नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 के यानी कि कर्म योग के श्लोक 15 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मा ब्रह्मोद भवाम विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद भवाम तस्मात् सर्वा गतं ब्रह्मा नित्यां यजने प्रतिष्ठिताम्. Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. जैसे हम सैक्रिफाइस करते हैं ना, उतना ज़्यादा ही हम स्पिरिचुअल जर्नी में ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं. रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ जो हमें करना चाहिए, जो एक्टिविटीज़ रेगुलर लाइफ में, वो बताया गया है वेदास में. एंड द वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. वेदास को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड से मैनिफेस्ट की गई है. कंसिक्वेंटली द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस इज इटर्नली सिचुएटेड इन एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस. हमारे जो डिफरेंट एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस है उससे जो कंसिक्वेंटली द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस इज इटर्नली सिचुएटेड. जितना भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं उसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स एंड सर्विसेज हमें करना चाहिए, दैट इज written that is actually possible through sacrifices. Sacrifices of negative thoughts, sacrifices of negative actions, negative words और अच्छाई की तरफ चढ़ते जाना. तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं. यज्ञार्थ कर्मा or the necessity of work for the satisfaction of Krishna only is more expressly stated in the verse. If we have to work for the satisfaction of the Yagna Purusha Vishnu, then we must find out the direction of work in Brahman or the transcendental Vedas. The Vedas are therefore codes of working directions. Anything performed without the direction of the Vedas is called vikarma और unauthorized और sinful work. जैसे वेदास में बोला गया है उसके विपरीत अगर करते हैं तो उसको विकर्मा बोला जाता है, sinful action बोला जाता है. Therefore, one should always take direction from the Vedas to be safe from the reaction of work. As one has to work in ordinary life by the direction of that state, one similarly has to work under direction of the supreme state of the Lord. Such directions in the Vedas are directly manifested from the breathing of the Supreme Personality of Godhead. It is said that Asya Mahato Bhutasya Nisvasitam Itad Ad Ragvido Yajurveda Samavedo Tharvan Giras. The four Vedas, namely the Rig Veda, Yajurveda, Samaveda and Atharva Veda, are all emanations from the breathing of the sense personality of Godhead. जैसे कि ईश्वर के सांस छोड़ने से वो सब की उत्पत्ति हुई है, मतलब उसमें ईश्वर बसते हैं. ब्रह्मद अरण्यका उपनिषद. The Lord being omnipotent can speak by breathing air, for as it is confirmed in the Brahma Samhita, the Lord has the omnipotence to perform through each of the senses the action of all other senses. In other words, the Lord can speak through his breathing and he can impregnate by his eyes. In fact, it is said that he glanced over material nature and thus fathered all living entities. After creating or impregnating the conditioned souls into the womb of material nature, he gave his directions in the Vedic wisdom as to how such conditioned souls can return home back to Godhead. We should always remember that the conditioned souls in material nature are all eager for material enjoyment. But the Vedic directions are so made that one can satisfy one's perverted desires, then return to Godhead, having finished his so-called enjoyment. It is a chance of the conditioned souls to attain liberation. Therefore, the conditioned souls must try to follow the process of yagna by becoming Krishna conscious. Even those who have not followed the Vedic injunctions may adopt the principles of Krishna consciousness, and that will take the place of performance of Vedic yagnas or karmas. So यहाँ पे जो मेंशन किया गया है
कि हमें जो काम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सैक्रिफाइसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ईश्वर मतलब सारे क्या काम इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है वो सारे वेदास में मेंशन गया है। एंड वेदास ईश्वर के सांस का अंश है, यानी कि ईश्वर के ऐश्वर्य चीज़ों से भरी हुई लिखी है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ ऑल गॉडली इंफॉर्मेशन एंड दोज आर राइट, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है। एंड जैसे बोला गया है कि जब भगवान बात करते हैं या फिर उनके जो हम जैसे सांस छोड़ते हैं बात करते वक्त, या जैसे सांस छोड़ते हैं, ऐसे ईश्वर जब ऐसे सांस छोड़ते हैं उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो मटेरियल नेचर में छोटे छोटे सोल्स को इम्प्रेग्नेंट करके, यानी कि उनमें सोल्स को जन्म दे पाए मटेरियल वर्ल्ड, उस तरीके से उनको क्षमताएं प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे सोल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं उनके सांस छोड़ने से, या ईश्वर के ब्लेसिंग्स से। सांस छोड़ना यानी कि उनका जो बात करना है, यानी वो कुछ बोल रहे हैं यानी ब्लेसिंग कर रहे हैं। ईश्वर का कुछ बोलना या उनका कुछ एक्शन ही ब्लेसिंग के समान है। तो जब भगवान ब्लेस करते हैं तो सारे सोल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वो वैदिक विजडम को अपने अंदर लेने से सोर्स एनर्जी तक लौटने का रास्ता भी ढूंढ पाते हैं। एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंडीशन सोर्स इन मटेरियल नेचर आर ऑल ईगर फॉर मटेरियल एन्जॉयमेंट। सबको ही मटेरियल एन्जॉयमेंट का मन होता है, लेकिन स्पिरिचुअल भावना में जैसे ही वो जाते हैं ईश्वर के भावना से, हैविंग फिनिश्ड हिज सो कॉल्ड एन्जॉयमेंट, वो रिटर्न कर जाते हैं भगवान के पास। ठीक है, इट इज अ चांस फॉर कंडीशन सोर्स टू अटेन लिबरेशन, देयरफॉर द कंडीशन सोर्स मस्ट ट्राई टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ यज्ञ बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करके यज्ञाएं जो है उसको फॉलो करके सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। इवन दोज हु हैव नॉट फॉलोड द वैदिक इंजंक्शंस में अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड दैट विल टेक द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक यज्ञास और कर्मास। तो अगर हम जो वैदिक इंजंक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते, वो अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो प्रिंसिपल्स है, यानी कि संकीर्तन करना, ईश्वर के भावना में रहना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अगर ये सब कर सकते हैं तो फिर उससे भी वो वैदिक मतलब इन कर्मों से भी वो ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, या फिर ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर सकते हैं। यही तक था श्लोक नंबर 15। थोड़ा डीप है ये वाला श्लोक, इसमें थोड़ा सा वैदिक स्क्रिप्चर्स के प्रति इंसानों की इच्छाएं को ग्रो करने के लिए, या हम वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़े उसको समझे, इसलिए हमें थोड़ा सा मोटिवेट किया जा रहा है, या फिर हमें थोड़ा सा एनकरेज किया जा रहा है। यही तक है श्लोक नंबर 15। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे श्लोक नंबर 16 को। तब तक के लिए हरे कृष्णा।